So in today's class, we are going to discuss about what will be tacit knowledge. Okay, starting with our topic. So in this particular class, we are going to discuss what is knowledge capture procedures, how we have to identify, again, who are the expert in that, single versus multiple experts, either what is best strategy, then interview as a source of technique in terms of like knowledge capturing. This is one of the things, and what are the sources and what are the problems in regarding this particular interview technique. So again, we are going to discuss one by one that what all these are all about. Okay. हमने अपनी पिछली क्लास में भी we discussed about the stages of this knowledge management cycle, that what was knowledge management system life cycle, that what are the pros, what are the cons. Let's again have a recap. We started with the evaluation of existing infrastructure, that in existing infrastructure में हमारे पास existing knowledge क्या है. We need to gather that. Then we need to formulate knowledge management teams. Then we started with आज हम ये जो knowledge capturing in terms of this one, how we are going to go along with this capture thing. We are going to study this one. Then design the blueprint, verifications, implementation. This will be coming in our upcoming classes. So today, knowledge capture, किस तरह हम capture करनी चाहिए. There is a method called as rapid prototyping. जो prototyping जो blueprint है, ये सामने हम उसको बना के दिखाएंगे. So we'll discuss these topics. All right. So starting with what is knowledge management. Again, knowledge management is something, basically it's a challenge for any organization or anyone to capture the tacit knowledge, because there are different definitions. But agar main baat karu, somebody has said it is applied brain drain. Somebody has said it's a transfer of problem solving expertise from one knowledge source to another one. Sometimes it would be investigative, experimental procedures. So again, different things are there. But whatever you are going to do, you are going to have your expert. जहाँ से आपके, like for example, there is an expert in IT. तो मैंने IT वाले जो expert के साथ बैठ के अगर कोई मैंने बात की या उससे knowledge information sharing लेने की कोशिश की. So basically, I am trying to capture the knowledge. तो इसमें जिस तरह हमने last time भी बात किया था, knowledge capture में we have a developer in terms of like who is going to implement those things, and there is a person who is going to ask the expert. For example, I am the knowledge developer. मैंने उस बात पे काम करना है, but मुझे इस चीज का बारे में कोई idea नहीं है. So what I'm going to do, I'm going to go to the expert. For example, expert of that domain. I'm going to ask, अच्छा ये कैसे होता है, ये क्या होगा, इसका आप मुझे गाइड कर सकते हैं. तो being a knowledge developer, मुझे डेवलप जरूर करना आता है, बट मेरे पास उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाऊंगी और उससे डिस्कस करूंगी. माइट बी वो एक्सपर्ट उसका लाइन मैनेजर हो सकता है, माइट बी वो बॉस हो सकता है, माइट बी वो यूजर हो सकता है जिसने ये रिक्वेस्ट डाला कि यार मुझे कोई प्रोग्राम या कोई वेबसाइट लॉन्च करानी है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप में अगर जो जो नए नए फीचर्स ऐड ऑन हो रही हैं, तो बीइंग अ डेवलपर आई नो कि किस तरह ऐड करने हैं, बट यूजर इंटरफेस में क्या चीज कैसे नजर आएगी, आई नीड टू आस्क समवन कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन. Anyone having any question, you can raise your hand and then I can ask you. ठीक है, because फिर इस तरह क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी. In terms of like, again, we got to know that who are the expert, how we are going to go along with them in terms of capturing the knowledge, because again, it's a critical procedure, because sometimes your expert is not ready, or sometimes we'll discuss how there can be delay on the part of expert as well. All right. Then we have three important techniques in terms of like capturing the tacit knowledge. First of all, you need to see how you can elicit that information. Now, eliciting is something कि आप उसको किस तरह ट्रांसक्राइब करा सकते हो, किस तरह आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी से इंफॉर्मेशन, अगेन यूजिंग एनी टूल. फॉर एग्जांपल, हमने जिस तरह बात की, हम इंटरव्यूज ले सकते हैं उस बंदे से, या हम उससे बातचीत करके आई विल बी नोटिंग डाउन द मेजर पॉइंट्स, और मे बी I will be observing that person and then I can make my notes. So again, there are different strategies and techniques. Then you have to interpret in terms of like whatever that person has said, you need to interpret the information कि वाकई में सही कह रहा है, ये नहीं कह रहा. या for example, बहुत दफा maybe there could be a biasness as well. मुझे समझ कुछ आई, वो क्या कुछ और है, या उसका कहने का मकसद या उसका जो meaning है, वो that person is saying something. So again, what is my reasoning abilities, that matters a lot in terms of your tacit knowledge. Lastly, you need to have
there are few certain things that needs to be kept in mind while capturing and transforming this tacit knowledge is like my way of thinking in terms of like मेरी कितनी सलाहियत है कि मैं चीजों को इंटरप्रेट कर सकता हूँ, उसको बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ. Might be I think it's having a dual meaning, or I would be something I won't be paying that much attention. So हो सकता है वो चीज वैसे मुझे डिलीवर ना हो जो जो मुझे एक्सपर्ट बताने की कोशिश करता है, या हो सकता है expert ने भी कोई चीजें मुझसे, maybe he is afraid of telling me, or maybe there are something that is between the lines he is not sharing with me. So there are so many things that being from the developer as well as from the expert side, I need to be careful. Any question up till now? जो कोई चीज अगर tacit knowledge में या steps में कुछ समझ नहीं आई, you can ask me, you can raise your hand. मैम मुझे ना फॉर्मल नॉलेज मैनेजमेंट क्या है वो थोड़ा सा बताइएगा. Formal knowledge management we have not discussed, अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया. मैम बट आप अभी जो है ना नॉलेज मैनेजमेंट का जिक्र कर रही थी ना, तो उसमें जो है ना फॉर्मल नॉलेज मैनेजमेंट क्या आती है? अभी तक हमने दुरिन आयाब हमने बात की टेसिट नॉलेज की और एक्सप्लिसिट की, फॉर्मल की तो बात ही नहीं की अभी. मैं अगर आता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके राइट. Okay. So this is basically the hub, or you can say this is basically the life cycle, the KM system of life cycle. It starts with from here, how you're going to capture the knowledge in terms of like creation. That creation go into codification, code करेंगे. Codification में there are different steps like tools क्या map outs करें, किस तरह rules करें. Then हम उसको testing and deployment phase में लेके जाएंगे कि हमने जो चीजें हमने coding में डाली, these are the codes of my, for example, I am working on some IT का मैं कोई अपनी अपनी माइट भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनवा रही हूँ, तो मैंने पहले नॉलेज गैदर की कि मुझे वेबसाइट पे क्या 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 मटेरियल चाहिए, फिर मैंने उसको कोडिफाई किया, फिर मैंने उसको टेस्ट फेज में डाला कि अच्छा ठीक है मुझे ये चीजें डिप्लॉय करनी है. देन आई नीड टू सी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आई नीड टू शेयर अगेन, कि मेरे सामने यूजर इंटरफेस पे क्या इन्फॉर्मेशन नजर आनी चाहिए. देन अगेन हाउ इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड. तो अगेन ट्रांसफर्ड में वो एक्सप्लिसिट में जब तक हमारे सामने नहीं आएगी तो वो इम्प्लिसिट रहेगी, या उसको हम टेसिट भी कह सकते हैं. सो अगेन जब हमारे सामने आएगी तो एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज बेस का पार्ट बन जाएगी, हमारे डाटाबेस में आ जाएगी. मे बी मैंने अपने उस वेबसाइट पे अपने बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स शेयर करवा दिए, अपने बहुत से मैनुअल शेयर करा दिए, पॉलिसीज शेयर करा दी, एसओपी शेयर करा दी. So again, that becomes part of like knowledge transfer. Yep, everyone can seize that. So again, the things start with over here. How I'm going to capture, because capture is something more in terms of like sensitive or challenging task, because sometimes हमें बहुत सी चीजें पता तो होती हैं कि करना कैसे, बट उसको जब तक इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं लेके जाएंगे, वी कुड नॉट हैव द आइडिया, वी कुड नॉट हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको किस तरह कोडिफाई करें, उसको किस तरह फर्दर स्टेप डाउन करें इनटू स्मॉलर पीसेस. लाइक पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले कि मेरी जो अगर मैं मेरी वेबसाइट पे पहला पेज या होम पेज में क्या चीज नजर आनी चाहिए. सो अगेन आई नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी done. So basically this is the whole procedure from capturing to knowledge transfer, that is the KM system is being in hand and you can have the information about it. All right, then we have how we are going to improve the knowledge capture procedure in terms of like then we need to see how we have to focus on a problem in terms of like कि मैंने अपने expert को बताना है या पूछना है उसे कि यार मुझे इस पे काम करना है. So again, how I'm going to go with that, because जिस तरह हमने पहले बात की कि expert को again we need to clarify कि what exactly is our outcome, कि हम किस side पे जाना चाहते हैं, हम किस काम करना चाहते हैं. Sometimes we need to look beyond the facts. What does that mean, look beyond the facts? Anyone? Yes, Asim. अस्सलाम वालेकुम मैम. One time. Looking beyond the facts means anyone? कोई इस पे कुछ समझ आ रही है क्या होता है? Like the heuristics are basically something you enable them to learn. Like for example, I ask you to learn this.
तो ठीक है, मुझे इतना तो पता ही है इस चीज के बारे में, बट समटाइम आई वुड लाइक टू लुक बियॉन्ड, लाइक इससे ज्यादा आगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नो अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँ यार ये तो मुझे पता है, इसके बाद क्या, इसके अलावा क्या। तो आई वुड लाइक टू गो बियॉन्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक कि मैं जब एक्सपर्ट से बात करी होंगी या डोमेन एक्सपर्ट से बात करूंगी, सो आई वुड लाइक कि यार आप वो निटिग्रिटीज मुझसे शेयर करो जो मुझे नहीं पता। So I would be well aware in terms of developing that procedure. Then I would like to reevaluate that how this thing is done. Again, reevaluation means कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे देखना है कि यार मैं इसको किस तरह improve कर सकती हूँ, इसमें क्या चीजें हैं that could be in my hurdles. So again, I would like to focus on those things. Then in terms of like how accurate the problem is molded. अच्छा, sometimes सामने वाले को मुझे वही clarity. All right, then we need to make the problem more molded in terms of like how much modeled the problem is. Like जो सामने वाला मेरा एक्सपर्ट है उसको कितनी प्रॉब्लम क्लियर है, उसको मैं कितना क्लैरिफाई कर पाया हूँ कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं आपसे बेसिकली पूछने आया हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू डेवलप इट. फॉर एग्जांपल, फॉर माय यूजर इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट्सएप, माय एक्सपर्ट वुड बी हैविंग द आइडिया कि इसको करना कैसे है, बट टिल द टाइम आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट माय क्वेश्चन वेल टू द एक्सपर्ट, वो तब तक मुझे गाइड नहीं कर पाएगा. बहुत दफा ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए बट आपको सवाल का जवाब नहीं पता, तो वी आस्क यू कैन यू क्लैरिफाई द क्वेश्चन, कैन यू टेल अस मोर डिटेल्स. सो अगेन, जब तक प्रॉब्लम सही तरह समझ नहीं आएगी वी कुड नॉट solve that problem. So the same goes with the developer versus the expert. एक्सपर्ट को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो तब तक उसको नहीं बता पाएगा जब तक उसको क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जितना क्वेश्चन उसको क्लियर नहीं होगा. जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, definitely that person will be responding concisely and to the point as well. Then we have there are different like methods. Either you are using a single expert for capturing this data, or you are having different people. Like मैं सिर्फ एक expert के साथ directly deal कर रही हूँ, या मैंने कहा नहीं यार have multiple experts. So there are some advantages and disadvantages. When we look at the advantages, number one advantage is ideal when building a simple knowledge management system. अच्छा, sometimes it happens कि यार आपकी चीज बहुत maybe like it's really easy to close ties with a person because सामने आप one on one बैठ के आप बहुत चीजों को डिस्कस कर लेते हो और then and there problem solve हो गया. So this is one of the advantage. Fine. Sometimes you are restricted to one domain. मतलब हो सकता है वो domain expert हो, उसके पास पर्टिकुलर चीज का domain knowledge है, तभी आपका प्रॉब्लम वो आप बंदा आसानी से सॉल्व कर सकता है. मे बी यू डोंट नीड टू हैव अनदर ओपिनियन, तो आपको जो दूसरी ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है. मे बी ही इज एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. अच्छा, थर्ड इज easier to coordinate meeting. Sometimes it's also easier क्योंकि आपको एक बंदे के साथ हो सकता है कभी कभार मीटिंग अरेंज करना या फिक्स करना ज्यादा आसान है ना कि सब लोगों के साथ बिठाना. So again, this could be one of the advantage. Also, conflicts are easier to resolve. अगर there was like clash of opinion या मुझे अपने एक्सपर्ट की बात समझ नहीं आई या मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी बात में या हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो अगेन वी कैन इजीली रिजॉल्व बिकॉज वन ऑन अप्रोच इज देयर, ओनली वन पर्सन इज देयर, सो यू कैन इजीली कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन इज देयर, तो चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाती क्योंकि इजीली रिजॉल्व आउट हो सकती हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. देन समटाइम इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइक वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी. अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो डेफिनेटली जितनी ज्यादा कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, तो अगेन जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली हर बंदे का अपना ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी राय है. हो सकता है चीजों को मैनिपुलेट भी हो सके, हो सकता है जो चीजें हम सॉल्व आउट कराना चाह रहे थे एक एक्सपर्ट के साथ वो ना हो पाए. सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस. देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. दैट्स समथिंग दैट the risk that expert knowledge is not easy to capture. In this particular meaning is like sometimes उनको communicate करना या explain करना it becomes very difficult कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ताकि मैं exactly वैसे information अपने expert से ले सकूँ. बहुत दफा आपका maybe the way you are telling the person, that person is not clear. या हो सकता है कि communication में barrier हो सकता है language में barrier हो. Yes, Aisha? All right. So this could be one of the disadvantage. Another disadvantage is like
being the single expert, maybe that you are singling out one of the reasoning. Like that means you are only focusing on one part. जिसे ना कहते हैं ना एक दिमाग तो एक ही बात सोचेगा ना. So again, sometimes it also happens कि if you are having just only one person, तो वो अपना point of view, अपना experience और अपनी चीजें बताएगा. So again, that will be very confined. हो सकता है कि हमारा problem उस तरह solve ना हो सके. Then sometimes it also happens कि आपका जो expert knowledge is sometimes dispersed. Now dispersed again is like clarity information is not there. बहुत distorted information है, उसने बता तो दिया मुझे, but I'm not able to capture that information because बहुत distortions हैं या बहुत ज़्यादा उसमें चीजें इधर उधर की बातें, like कोई पहले उसने कुछ और कहा, फिर कुछ और बता दिया, फिर कुछ और कह दिया. So I was not able to, जैसे कहते हैं एक puzzle को जब हम जोड़ रहे होते हैं तो वो puzzle properly we cannot concise के exactly at the end of the day वो बनी क्या. So again, the information was not clear, it was cluttered. Then we have single expert more likely to change. अच्छा, बहुत दफा ये भी होता है कि हमने schedule meeting एक टाइम पे रखी, बट उसने एक्सपर्ट ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, या मेरे पास अभी कोई और डेडलाइन है, या माइट बी मैं आपको टाइम नहीं दे सकता. सो अगेन दिस कुड बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि बहुत दफा जब अकेले किसी से मिलना होता है तब वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता, या बार बार वो डिले हो जा रहा होता है, या कोई और कमिटमेंट्स आ रही होती है. सो अगेन दीज कुड बी फ्यू ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि अगर आप एक एक्सपर्ट की तरफ जाओगे. देन देयर वाज अनदर थिंग, अगर आप एक एक्सपर्ट की जगह मल्टीपल एक्सपर्ट्स को लो टैसिट इंफॉर्मेशन के लिए, इससे सबसे पहले वी विल गोइंग टू गो विद द एडवांटेजेस. यस के प्रॉस केम, द प्रॉस आर लाइक complex problem solving, benefit from expertise of more than one expert. Definitely when we are having different people, so new directions can be given, new sides of the things can be given. What exactly you're talking about, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो सकता है एक बंदा was not clear but second person was clear. Yes Danish. Assalamu alaikum. Walaikum. I just joined the class. Sorry Okay. for the disturbance. Okay. Okay. I thought you want to add something. All right. Then we have like again एक बंदा, again जब ज़्यादा बंदे होंगे, जब we have more expertise, so again they can add more information. Then multiple experts stimulates interaction. अब interaction in terms of like stimulation is like quality of the knowledge, because बहुत दफा हम जब cross questioning करते हैं, एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, तो we become more cleared on one point. कि अगर for example पहले हमें clarity नहीं आ रही, बहुत dispersion था, तो यहाँ पे वो clarity resolve हो सकती है. Then we allow different ways of representative knowledge in terms of like किसी ने कुछ हमें लिख के बता दिया, कुछ वैसे हमसे नॉलेज शेयर कर ली, किसी ने अपने कोई स्टोरी बता दी, किसी ने कोई एग्जांपल दे दी. So again different representation of the knowledge could be there. So this could be one of the way जिससे ज्यादा अच्छा समझ आ सकता है. Then we have formal meetings often. अच्छा, formal meetings से कभी कभार ये फायदा होता है, जो डिस्कशन होती है, if there are seniors and juniors involved, or there are people with even the same hierarchy, but एक respectful way में you can discuss multiple aspects. So again, this is one of the advantage. जब ज़्यादा लोग होते हैं, so we can have advantage in terms of sharing the tacit knowledge. Then there are few disadvantages definitely. Again, scheduling difficulty, because to have everyone on board at one time would be difficult. कि अगर किसी और का कोई और काम है, they are busy in their own projects. So again, scheduling could be one of the difficulty in terms of multiple experts. Then this is very common, disagreement. I am not agreeing with someone because हो सकता है मेरा अपना opinion different है. When we have diverse like people in terms of like multiple expert, when diversity is there, so definitely clash of opinions, conflict can be there, disagreements can be there. But being a developer, I need to see कि मुझे exactly क्या extract करने हैं और मुझे उनको किस तरह back on line I need to keep them on track, किस तरह उनको track पे रखना है. Then confidentiality issues, again like I said, जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा चीजें होंगी, तो अगेन इट इज डिफिकल्ट कि हम चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख सकें. सो वी नीड टू सेट पैरामीटर्स. यार इस चीज पे हम बात करेंगे, इस पे बात नहीं कर सकते, इस चीज को हमने नहीं हाईलाइट करना कहीं पे भी. सो अगेन वी कैन टेल आवर टैसिट नॉलेज इंफॉर्मेशन इनफॉर्मर्स एज वेल कि हम इस पे बात करेंगे लाइक अदर एक्सपर्ट्स. देन वी हैव रिक्वायर्स मोर देन वन नॉलेज. Again, in terms of when you are developing something, जब आप कोई knowledge developer है, अब उसके पास एक developer सारा चीजों को सब multiple expert की चीजों को might be he is not able to
डाइजेस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक वो सब कुछ नोट डाउन नहीं कर सकता, तो हो सकता है उस टाइम पे हमें एक से ज्यादा डेवलपर की भी जरूरत पड़े, लाइक वी नीड टू हैव 2 or 3 डेवलपर्स इन आवर एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ लाइक टॉकिंग टू द एक्सपर्ट, ताकि वो सब चीजें इसको देख सकें कि एग्जैक्टली व्हाट आर द requirements. So again, we need to go with that. Lastly, overlapping of mental processes can lead to process loss. Now, what is process loss? Anyone? What is a process loss? Anyone having any idea? Yes, ma'am. Yes, Anawla? मैम प्रोसेस फ्लोस में ये हो सकता है कि एक चीज़ अगर सीक्वेंस में चल रही थी, जस्ट लाइक आप कोई आइडिया डिस्कस कर रहे थे, मीन दैट के उसके बाद ही आप डाइवर्ट हो जाते हैं किसी और चीज़ के किसी और Right. तरफ, तो प्रोसेस लॉस हो सकता है लाइक दैट के मल्टीपल एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और किसी ने कोई और पॉइंट ऐड कर दिया, तो जो ठीक है। ओरिजिनल टॉपिक होता है उससे डिस्कशन हट जाती है। Exactly. Like आप divert हो जाते हो किसी और चीज में. Yes, very good. Anybody else? इनएफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स लाइक आप जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको इनएफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, जैसे मेजॉरिटी होता है कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है हम उस पर फोकस नहीं करते, Right. rather than हम इररिलेवेंट नॉलेज और इररिलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। Right. Very good. बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बात कुछ हो रही होती है बट वो बात के किसी और तरीके में कोई रीडायरेक्ट हो जाती है, या कोई और, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन आपसे एग्री नहीं करी तो मैं हो सकता है जब डिसएग्रीमेंट की तरफ जाऊंगी तो हम बात को कहीं और ले जाएं। सो अगेन जो इन्फॉर्मेशन दैट वाज लाइक दैट नीडेड टू बी शेयर वो वहां पे नहीं होती, क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, या प्रोसेस में अगेन वी रीडायरेक्ट आवरसेल्फ टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। सो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि व्हेन वी हैव डिफरेंट पीपल या मल्टीपल पीपल, बिकॉज हर बंदा अपने जहन से सोच रहा है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदा जब एक्सपर्ट होके भी अगर अपना ओपिनियन देता है, सो अगेन वी नीड टू ट्रैक एवरीवन ऑन वन पेज इन टर्म्स ऑफ लाइक यार हम इस चीज के बारे में बात करें, तो लेट्स स्टिक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, किसी और टॉपिक की तरफ ना जाए, अदरवाइज इट वुड बी ओवरलैप्ड एंड वी वुड बी मिसलेड कि हम एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो टॉपिक असल टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है और कोई नई बात शुरू हो जाती है। सो अगेन we need to keep our expert into what exactly is being discussed right now. So these are few of the disadvantages of having multiple experts in terms of tacit knowledge. Then developing a relationship. Again, anything could not be done when you are not having a good relationship with your expert in terms of like having a working relationship. सबसे पहले we need to create impression. अब हम सामने वाले पे कैसे impression बना सकते हैं? What do you think? मैम आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। Yes. मैम हमने बात की कि मल्टीपल अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं तो डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन एक एडवांटेज ये भी तो होता है कि अगर उनमें से कोई क्रिएटिव है ज़्यादा तो ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, तो जो बेस्ट वन होता है दैट वी कैन चूज, और जो बेस्ट नहीं होता हम उसको लीव कर सकते हैं, तो ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, हम आइडिया को रिफाइन कर लेते हैं कि दिस इज गुड टू गो एंड दिस इज लाइक ये वाली चीज नहीं थी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। राइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ वी हैव टू क्रिएट द इम्प्रेशन। हम एक अच्छा इम्प्रेशन सामने वाले पे या किसी पे कैसे डाल सकते हैं? व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? मैम बाय ट्राइंग टू बी अ हेल्पिंग हैंड। बाय ट्राइंग टू बी हेल्पिंग हैंड, वेरी गुड। और या हमारे जो सीनियर्स हैं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस फील्ड पे है या किन चीज़ों में है, तो उनके साथ जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में लाई जाएं। ठीक है, वेरी गुड। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना, वेरी गुड। और सबसे क्या देखेंगे, इंप्रेशन कैसे बिल्डअप होता है किसी पे सामने वाले पे? आई थिंक मैम साउंड नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से। वेरी गुड, साउंड नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि मतलब जब अब अपने एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं ही और शी वुड बी लाइक यार अच्छा आपको समझ आ रही है, यू आर ऑन विद मी, लाइक आप मेरे साथ हो, राइट? अच्छा, सबसे पहले आई बिलीव जब आपने सामने वाले पे कोई इंप्रेशन बनाना है, अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको साउंड नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि आपके उस बंदे के बारे में क्या परसेप्शन है। बहुत दफा हमारी परसेप्शन हमारी बातों में रिफ्लेक्ट करती है। इफ आई एम लाइक यार इसको तो कुछ भी नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, तो वो मेरी बातों में कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चंस में, मेरी आर्ग्यूमेंट्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगेन आई नीड टू परसीव यार दिस पर्सन इज देयर फॉर मे बी फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। आई नीड टू आस्क दिस पर्सन जो मेरी मेरी क्वेश्चंस हैं, जो मुझे क्लैरिफाई करनी है, जो मुझे उसके बारे में आई नीड मोर डिटेल्स। सो अगेन योर फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विद having the right impression, like हम दोनों एक like again जैसे हम कहते हैं ना
बी कंफर्टेबल, बी एट एज, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके. देन द सेकेंड स्टेज कम्स इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट स्टाइल. अगेन हर बंदे का स्टाइल बात करने का मुख्तलिफ होता है. कोई बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है, कोई बहुत अच्छा डिटेल ओरिएंटेड होता है, कोई बहुत अच्छा मे बी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन. कोई बात को बिल्कुल क्रिस्प टू द पॉइंट करता है. सो अगेन यू नीड टू सी कि यार आपको एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उस बंदे के एक्सपर्ट के स्टाइल के साथ. हो सकता है उसने बहुत टू द पॉइंट बात की बट आप यू वर नॉट क्लियर अबाउट दैट थिंग, सो यू नीड मोर डिटेल्स कि एग्जैक्टली कैसे होगा. सो अगेन ये आपकी एक्सपर्टीज है कि आपने किस तरह उसको उससे बातों को निकलवाना है. We'll discuss about expert style again. Then we have how we have to prepare for the session. Again, जो अभी बात की सनाउल्लाह ने भी कि आपको पहले से साउंड नॉलेज होना चाहिए या इसने कहा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए. अगेन वी नीड टू गो prepared for the session. Like मुझे पहले से familiar हूँ कि मुझे क्या क्या पूछना है, उससे क्या क्या challenges that I as a developer are facing. So I need to ask that person. So again, that could start with the introduction of the expert as well कि मुझे पता है this person is expert in this. So मुझे इस चीजों के बारे में बात करनी है. Then I need to see where I exactly decide to hold the session. Now holding a session means कि मुझे उससे ऑनलाइन बात करनी है, मुझे उससे फिजिकल वन ऑन बात करनी है, मे बी उसके ऑफिस में जाके बात करनी है, या मे बी एनीवेयर वेयर वी आर कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग एंड टॉकिंग. हो सकता है बहुत लोग ऑफिशियल प्रेमिसेस पे दे आर नॉट दैट मच feasible in terms of sharing the information. तो हम कहीं और जाके किसी कैजुअल जगह पे या कोई इनफॉर्मल मीटिंग करके we can have the information sharing, knowledge sharing. So again, deciding the venue is also important कि कहाँ बैठ के हमें बात करनी चाहिए इस पे. Then जिस तरह अभी हमने कहा what are the styles of different experts. हर style different होता है हर expert का. The first style is procedural style. अब procedural style में क्या होता है? The person is more onto structure. Like वो बहुत ज्यादा methodological approach to the solution बताएगा, सिर्फ structure पे बात करेगा. For example, ये हो गया, ये हो गया, ये लॉजिकल बात है, अच्छा ये है, ये प्रोसीजर होगा. तो बहुत ज्यादा in terms of like his emphasis would be कि यार बस ये इस तरह कंटेंट था, इस तरह बन जाएगा, तो ये इसका लेआउट होना चाहिए, ये कंटेंट है तो बस ये. तो प्रोसीजरल, बहुत से लोग लाइक स्टेप ऑन स्टेप बात नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा ये चीज है, इस तरह है, ये चीज होगी, ये चीज होगी, हो जाएगी. हो सकता है आपको उस चीज हो तो जाएगी बट उसके अंदर की डिटेल्स भी पता होनी चाहिए. सो अगेन यू नीड टू आस्क द एक्सपर्ट. दिस इज वन स्टाइल ऑफ द एक्सपर्ट. देन स्टोरी टेलिंग. अच्छा बहुत से लोग स्टोरी टेलिंग में अगेन यू नीड टू सी एग्जैक्टली आपको किस चीज पे फोकस करना है. स्टोरी तो ठीक है बट अगेन हो सकता है स्टोरी टेलिंग का आपका बेटर मेथड ये है कि अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ लेके जाओ, सो इट वुड बी अ गुड थिंग एज वेल. सो अगेन स्टोरी टेलिंग टेक्निक. गॉडफादर टेक्निक और गॉडफादर टाइप इज बेसिकली जहाँ पे अदर पर्सन इज वेरी डोमिनेंट in terms of might be possession, might be personality, might be he takes over the conversation. As expert, I know कि मुझे ज्यादा बेहतर पता है तो मैं आपसे कहूँगा आप ये करो, ये करो, ये करो. सो आप हो सकता है बहुत दफा इन चीजों में बहुत ये भी होता है कि मैनिपुलेट हो जाती हैं चीजें. अगला बंदा आप पे इतना हावी हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि यार क्या बात सही कर रहा था, क्या बात गलत है. सो अगेन यू नीड टू टेक द चार्ज ऑफ द सेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक बीइंग द डेवलपर कि आपको क्या पूछना है या आपको क्या डिटेल्स चाहिए. And lastly is another expert style that is called as salesperson. Now salesperson is again people who are good at in terms of like telling the best solution, telling their opinions कि यार ये ज्यादा सही है और इसको इस तरह कर लो. Sometimes it also happens कि they अब वो कन्वर्सेशन के अलावा हर बात के बारे में बात करेंगे बट कन्वर्सेशन के बारे में बात नहीं होगी, या कन्वर्सेशन के बारे में कहेंगे यार ये जो मैं बता रहा हूँ बस वो बात सही है, बाकी ओपिनियन सही नहीं है. सो अगेन यू नीड टू फाइंड आउट कि मुझे किस तरह रीडायरेक्ट करना है अपना कन्वर्सेशन को और उनसे स्ट्रेट रिस्पॉन्सेज ले सकूं, ना कि उनकी ओपिनियंस लूं बल्कि रिस्पॉन्स लूं कि यार ये चीज कैसे होगी. सो बेसिकली दीज आर द स्टाइल्स ऑफ एक्सपर्ट्स expressions. Now again deciding where to hold. Again this is something we need to see कहाँ कैसी environment. जैसे मैंने कहा इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बात करनी है, फॉर्मल इन्वायरमेंट में बात करनी है, उनके मीटिंग प्लेस पे बात करनी है, उनके ऑफिस जाके बात करनी है, या एनीवेयर एल्स दे फील कंफर्टेबल इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. All right, then we'll start how we have to prepare for the session. Preparation means again sound knowledge होनी चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें पहले से जो मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या करने हैं, किस तरह लेके चलना है उनको. क्या चीज मेरे पास इंफॉर्मेशन थी बट आई वाज नॉट क्लियर,
So again, I need to review all the existing information that was there, and then I can ask further questions from the expert ताकि वो उसको और elaborate कर सके. Also, sometimes we need to learn the expert language in terms of like जिस तरह हमने पहले कहा इंतजार करें, मेरी पैसा पहुंची बाबा कि the expert was having some like he was more comfortable in talking in maybe his own native language. So we need to be assured कि हम किस तरह बात करें ताकि कोई language barrier ना आ सके या कोई इस तरह की चीज ना हो कि मेरी information या मेरी language different है. So it's better to have formal language, either English or any other language you speak in that particular premises or environment. तो आप उसी में बात करें ताकि you are more comfortable in information sharing. All right. Now there's few approaches towards multiple experts. जब आपके पास जिस तरह हमने अभी बात की advantages और disadvantages की, जब multiple experts होते हैं तो multiple experts में या individual approach में there are things we need to see कि हमें क्या करना चाहिए. So in terms of like individual approach, an extension of the single expert approach. In this again, if the developer is meeting with the expert for the first time, so again you need to share information easily in terms of like कि मैं उसको सामने बैठ के आराम से बात कर सकूं, easily approachable होनी चाहिए, confidentiality should be there, privacy आपने रखनी है, हर बात को ये नहीं कि अच्छा ये हो जाएगा ये, तो आपने हर चीज को बहुत easy बहुत आसानी से शेयर करना है ताकि एक्सपर्ट आपको अप्रोचेबल लगे, लाइक वो आपको सामने वाले को लगे कि नहीं यार मैं इसको बात बता रहा हूँ तो ही इज अंडरस्टैंडिंग माय व्यू पॉइंट. सो इंडिविजुअल अप्रोच in terms of like how you are good in terms of having a good communication, having a good bonding between the two people. Then there are primary and secondary experts. The primary and secondary expert basically this defines के for example हो सकता है आपके उस particular जब हमने multiple experts की बात की तो वहाँ पे hierarchy का difference आ सकता है, कोई senior होते हैं कोई junior हो सकते हैं. तो to start with हो सकता है आपका कि यार I'll start with the bottom up approach. Bottom up approach is I'll start with the junior one and the senior one can add, or I can start with the top up approach कि या पहले senior बात करेगा फिर junior बात करेगा. So again depends on the strategy of the developer कि आपको क्या चीज comfortable है, क्या चीज की ज्यादा opinion आपको पहले लेनी है, पहली बात किसकी सुननी है. So you can start with that. Who is going to start, either the senior person or the junior person, or bottom up approach भी होती है या top up approach भी होती है. Then we have small groups. Now each group is again how we are going to discuss. Again you need to have a pool of information, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, उनके responses को clearly उसको लिखो भी, किस तरह हर काम किया जाएगा. Sometimes it also happens कि जो junior होते हैं they have a different opinion. हो सकता है मैं अपने senior से contradict करूं, but again that should be a healthy discussion, that should be a healthy debate. उसमें कोई conflict नहीं आना चाहिए. उसमें सारी चीजें जिस तरह होता है ना, like being a person who is conducting, being the host, I have the charge of the, just like for example being the host of this Zoom meeting, I have the authorities what exactly I need to set for the settings. So again being the developer I need to see कि मैं अपने juniors versus senior experts से what information I need to extract, or I need to keep them on one loop as well, one page as well, ताकि वो दोनों एक ही बारे में एक ही तरीके से बात करें और expertise अपनी और अपनी जो information है, information sharing आसानी उससे हो सके. Any question up till now in terms of like this or anything what we have discussed so far? मैम हमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की नीड और एज इंडिविजुअल एक्सपर्ट की नीड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पड़ सकती है, जैसे दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट? यस. अच्छा वही वाली बात है जिस तरह हमने पहले कहा था, हमने जब सिंगल एक्सपर्ट की बात की थी, यार मेरा इंफॉर्मेशन जब मेरा काम इतना छोटा है कि एक बंदे की राय से हो सकता है कि एक बंदे की जो एक ओपिनियन है दैट इज मोर देन इनफ. बट जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई डिजीज हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो कहता है आपको ये यूज हो गया या आपको ये मेडिसिन खानी है, यू ऑलवेज थॉट कि यार चलो लेट्स हैव अ सेकंड ओपिनियन एज वेल. तो सेकंड ओपिनियन वहीं पे आता है जब आपको लगता है कि मल्टीपल एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए, मुझे एक एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन I have some like might be मुझे clarity नहीं मिली, might be मुझे अभी भी मेरे doubts हैं, might be I have more questions in mind, तो हम बहुत दफा second opinion की तरफ जाते हैं. The same goes in our life when we have to make a big decision. हम एक की राय के बजाय काफी लोगों से अगर राय लेने की कोशिश करते हैं, हमसे ओपिनियन लेते हैं कि प्लीज हमें गाइड कर दें, हमें बता दें. तो the same goes with anything while we are developing a system in an organization. अगर छोटी सी चीज है इम्प्लीमेंट कर सकते किसी की एक की इंफॉर्मेशन से, एक की नॉलेज से, तो well and good. अगर नहीं कर सकते तो definitely we are going to go with multiple expert approach.
All right. Then there are some analogies. Anybody know what is analogy? Analogies क्या होती हैं? Ma'am, is it just like sequences? Sequences good. बेसिकली एनालॉजीज ये होती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस क्लास में अभी जब मैं कोर्स पढ़ा नॉलेज मैनेजमेंट का, मुझे ऐसा लगता है कि जो KUBS के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत नॉलेजेबल हैं, क्योंकि मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के वो भी नॉलेजेबल हैं. सो अगेन आई एम यूजिंग एनालॉजी टू एक्सप्लेन समथिंग कि यार मेरे साथ हो सकता है ये स्टूडेंट मेरे साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ पहले एक और स्टूडेंट भी था, वो भी इसी तरह का था और वो भी बहुत अच्छा था. सो आई एम बेसिकली कंपेयरिंग टू इंफॉर्मेशन एट वन पॉइंट. वो कंपैरिजन किसी भी चीज से हो सकता है. सो अगेन बहुत दफा एक्सपर्ट भी क्या करते हैं, दे यूज एनालॉजीज के उनके साथ हो सकता है ऐसा पहले भी हुआ था, तो अगर आप अभी भी ऐसा करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा. सो अगेन वी स्टार्ट यूजिंग दिस एनालॉजीज टाउन. अच्छा, एनालॉजीज यूज करने से कुछ फायदे भी और नुकसान भी हैं. हो सकता है कि पहले आपके साथ जो हुआ उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया, बट अगेन इफ यू आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग, हो सकता है इस दफा आउटपुट अच्छा ना हो. सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इंफॉर्मेशन में क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी, क्या चीज आपको सर्टन है और क्या चीज आपको लगता है कि नहीं यार इट नीड्स मोर क्लैरिटी, द इंफॉर्मेशन इज स्टिल डिस्टॉर्टेड. जिस तरह हमने बात की थी, द इंफॉर्मेशन वाज डिस्पर्स्ड, इट वाज नॉट क्लियर. या हो सकता है जो मेरी रीजनिंग एबिलिटी थी वो मेरी इतनी क्लियर नहीं थी, मुझे नहीं समझ आई कि एक्सपर्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा था. अब बहुत दफा जिस तरह हम किसी चीज को जिस तरह कहते हैं मुशाहबत देते हैं, किसी चीज को हम किसी के साथ जब जोड़ते हैं तो हो सकता है उन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, बट हम एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत प्यारी है, तो हम कहते हैं प्यारी का हम किसी और को जोड़ देते हैं, प्यारी है जैसा कि फूल की तरह. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रही हूँ. सो अगेन अब उसमें जरूरी नहीं है वो फूल की तरह हो या किसी तरह. इसी तरह एक्सपर्ट नॉलेज में अगर एक्सपर्ट ने कोई एक ऐसी एग्जांपल दी, उसने कहा कि हमने पहले इंफॉर्मेशन यूज की थी और इसको हमने ऐसे एंटरटेन किया था, बट हो सकता है दिस टाइम दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट relevant or not clear, yet that becomes irrelevant for this particular problem. So being the developer, you need to understand कि यार क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें मुझे certain है. If I am having some difficulty in interpreting the information, कि सामने वाले ने मुझे बता तो दिया बट मैंने सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर सका. So you need to clarify the information ताकि आप उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सको. इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज होती है फजी डिटेल्स में हो सकता है क्रेडिबिलिटी की भी. अब सामने वाले को कभी कभार हम चीजों के जब अनसर्टन होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं यार ये बंदा क्रेडिबल नहीं है, इसकी चीजें मैं क्रेडिबल नहीं समझता, या इसकी लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है कि डाउटफुल हो जाती है. सो अगेन ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी बीइंग डेवलपर के. यार अच्छा जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात वाकई ठीक है भी या नहीं है, या इसने हो सकता है पहले जब काम किया था उस पर तो काम हो नहीं पाया था, मुझे भी वही एग्जाम्पल दे रहा है, मुझे भी कह रहा है वही कर लो. So again, we need to be very clear in our thoughts as well कि यार हमें सामने वाले अपने एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में एज अ डेवलपर, या सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है. एंड देन आई नीड टू रिफाइन एंड टेक आउट द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी यूज्ड. ठीक है. All right. Now again, reliable information, reliable knowledge capture requires understanding, interpretation. Again, जो मैंने अभी बात की थी कि बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी बट मैंने उसको इंटरप्रेट सही नहीं किया था, या बहुत से इंफॉर्मेशन लगी कि आई ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, सो आई वांट टू नो एनी अदर डिटेल्स अबाउट दिस. सो अगेन एनालॉजीज. Then we have certain words like possibly, likely, और अगर मैं कहूँ definite. So again ये सारे वर्ड्स वो शो करते हैं कि यार सामने वाले को might be कि we are expressing belief कि मुझे ऐसा लगता है, this likely happen, this definitely happen. तो वो हम एक जब कहते हैं ना नॉलेज शेयरिंग में we are bonding a relationship as well, कि हम सामने वाले के बिलीव कर रहे हैं. यहाँ पे वो जो हमने पहले बात की थी क्रेडिबिलिटी की कि क्रेडिबल है, ये बात जो कर रहे हैं वो वाकई उसके पास या तो इन्फॉर्मेशन है या उसका बिलीफ है या उसको लगता है ऐसा होगा. सो अगेन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट आउट कि मुझे क्या चीज पर इस तरह यूज करनी है और क्या चीज नहीं करनी. दिस इज बेसिकली देखना, ये हमें चाहिए देखना पड़ेगा कि बीइंग अ डेवलपर मुझे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है. सो दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज द लाइक द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ एनालॉजीज एंड अनसर्टन इंफॉर्मेशन. Then we have interview as a tool. Now we are coming towards the stage कि हमें एक मेथड यूज करना है कि टैसिट इंफॉर्मेशन को हम कोई किसी तरीके से स्टोर कर सकें, कैप्चर कर सकें.
सो हमने कहा ज्यादा कॉमनली यूज जो मेथड होता है वो इंटरव्यू मेथड होता है, बिकॉज ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, ये बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ लाइक इसमें वन ऑन वन डिस्कशन हो सकती है, इसमें कोई हम पैरामीटर शेयर कर सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं कि हम क्या बात करेंगे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, इसमें एक वैलिडिटी भी आ जाती है. सो अगेन देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस इंटरव्यू एज अ टूल. लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स. बट बिफोर स्टार्टिंग, हम जब भी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, बीइंग एन डेवलपर आई नीड टू हैव एक्सपर्टीज कि मुझे क्या चीज को किस तरह अपना डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने हैं. हो सकता है मुझे सामने वाले अपने एक्सपर्ट से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछने हैं, अनस्ट्रक्चर्ड पूछने हैं, या वी आर गोइंग टू गो विद द फ्लो के बस क्रॉस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लाइक लीडिंग क्वेश्चन होते हैं. जरा एक क्वेश्चन खत्म हुआ, उस क्वेश्चन के आंसर से मैंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की एंड आई आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दीज आर कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चंस. सो अगेन आई नीड टू सी कि किस तरह लेके जाना है एंड हाउ आई एम गोइंग टू वैलिडेट द information. So now these are 3 types of interviews that can be conducted in terms of capturing the tacit knowledge. Number 1 are structured, that you have the specific questions in mind, you have something written in hand कि ये question मुझे पूछना है, ये चीजें मुझे clarify करनी है. Then they are semi-structured. Semi-structured again depending on the answer. जो जिस तरह मैंने उसको कहा, हम leading question भी जिनको बोलते हैं कि they are not structured but they are कुछ ना कुछ predefined question होते हैं, फिर उनके आंसर से you ask the next questions. And unstructured basically you don't have any question in mind, you just start asking and then you start exploring then and there, इधर से. So there is no structured format of that, so they are called as unstructured. इसमें कोई भी हमारे पास चीज सामने लिखी नहीं होती, हम बस एक टॉपिक होता है और उस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं and then we start exploring those particular dimension. Then there are variations of structured questions. अब structured questions में भी हमारे पास अगर different methods हैं, multiple choice है. For example, मैंने उस बंदे कोई पूछा कि यार अच्छा कस्टमर डीलिंग में आपने किस तरह ये किया, और आपने उसको 5 responses दे दिए, 5 हमने choose the best answer like 1 2 3 4 5 में से आप टिक कर दो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है. ये this is one of the approach. Dichotomous approach is basically this is also like between yes and no, कि हम उसको multiple choice दे तो रहे हैं बट उसमें सिर्फ yes और no होगा कि ये चीज yes करनी है हमने. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि किसी जगह प्लेजरिज्म, अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेजरिज्म is for this particular thing is not allowed. So again either we are going to say a yes or a no. So again होनी है या तो बिल्कुल नहीं होनी. So there is no in between answer, there is only 2 answers to that question. Sometimes we also have ranking skills. Now ranking skill is basically we ask the expert to rank items like 1 to 5. 1 can be the statement that describe the best of it and 5 can be the statement that describe the least of it. Like first one is the best and 5 is the least. So again 1 to 5 is हम ranking कर देते हैं. So again these are the different variations we can have in terms of asking tacit information. Then these are something guides to a successful interview. सबसे पहले set the stage and establish rapport. What does that mean? What is setting the stage? How we are going to establish the stage? Anyone? अगर हमें अब किसी से 1-on-1 इंटरव्यू करना है या किसी को किसी बात करनी है एज एक्सपर्ट एंड डेवलपर बैठ के, तो हम किस तरह पैरामीटर सेट करते हैं, किस तरह हम एक रैपो बिल्डिंग करते हैं. जब आपस में बैठ तो गए हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स नीड्स टू बी डन? As an interviewer or as an interviewee? As both. Like as setting the parameters, यार ये चीजें हमने करेंगे, तो both आपस में क्या चीज हमें एक दूसरे को शो करनी है. As an interviewer तो हम अपने कैंडिडेट को कंफर्टेबल कराते हैं, मतलब बी सीटेड एंड उस सलाम दो नॉर्मल जो बात होती है इस तरीके से, ताकि वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए. देन वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू. Yes. स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चंस होती है उनके हवाले से कि मतलब उनकी हॉबीज क्या है, क्या है उनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल दैट, वो उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है. और एज एन इंटरव्यूई हम तकरीबन कमोबेश सेम यही कर रहे होते हैं, क्योंकि जब सामने से रैपिड बिल्डिंग होती है तो जवाब के अंदर हम भी इसी चीज को ही लेकर के चल रहे हैं टू मेक अ बेटर कॉन्टेक्ट. Exactly. Very good. Very good. Yes, Danish. Basically, again, rapport building is setting the stage. Danish was very right, either from the interview side or the interviewee side. But there are few parameters in terms of like honesty. We need to build in terms of like कि हम कोई चीज को mislead नहीं करेंगे. Confidentiality, confidential रहेगी जो information आज हम आपस में share कर रहे हैं. Then there is respect element कि हम दोनों आपस में एक respect element that I would be courteous, I would be a good listener, and I will be shown. Then there is professionalism as well. कि professional in terms of like कि हम professional way में we are going to
have this conversation. Then efficiency is basically I will be respecting your time and you will be respecting my time. Segment that this is basically a commitment between both the parties. Then there is modesty is something कि I'm not going to show off कि यार being an expert मुझे सब कुछ पता और आपको कुछ नहीं पता. So again, modesty should also be there. So this is basically setting the stage and establishing the rapport कि ये सारी चीजें हम आपस में करेंगे. Then we need to phrase out the questions. Yes, Bashir, you have any question? All right. Then phrasing out the questions, like how we are going to have questions in mind, like what are the primary things we are going to ask, like ये हमारे questions जो most important and then least important है. So I need to chalk down. हम चीजें इसकी मैंने ये रखी, दो ही लगा दे बस. अटक. All right. Then we need. Is Bashir Ahmed this part of your class? उनकी लंबाई होती है, उनकी Yes, ma'am. Actually, he is unmuting and discussing something else. I need to remove him from the meeting. If he again do it, I have to remove because this is like disturbing the whole class. All right. Where I was discussing. Okay. Properly phrasing the question. I need to phrase out the questions के questions को किस तरह लेके चलना है मुझे, किस तरह मुझे explain करना है. अगर structured questions है, unstructured questions है, या whatever I have in mind, I need to tell the expert कि what needs to be done, कि मुझे exactly कैसे काम करना है. Then we have in terms of like क्या questions पूछने चाहिए, question की structure कैसे होना चाहिए, उनके construction में question की importance क्या होनी चाहिए, कि close-ended questions पूछनी है, open-ended questions पूछने हैं, या बिल्कुल ही आपको like direct straight away questions पूछने हैं. Then listen closely towards ताकि arguments ना आ सके. Like जिसमें हमने पहले बात की थी respect element की या modesty की या rapport building की. तो again professional way में I need to have a conversation कि हम उसको argument की तरफ नहीं लेके जाने. मैंने वहाँ पे कोई conflict नहीं arise करना. I am there to discuss the things ताकि जो चीज़ है between the expert and between the developer हम चीज़ों को sort out कर सकें. And lastly evaluate the outcome कि वाकई में मुझे सेशन को कोई फायदा हुआ, जितना टाइम मैंने लगाया, जितना टाइम आपने लगाया, what was the crux of it, what were the key takeaway points, or what were the expectations, either what exactly was achieved from that particular interview. So these were the guides to a successful interview. Now these are few of the things that needs to be avoided in terms of capturing the tacit knowledge. Number one, taping a session without advance permission. Now again, sometimes video recording, sometimes maybe a recording of the person, like having आप उसको video आप कर रहे हो, सब बना रहे वीडियो, या आप उसको कह रहे हैं maybe मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, might be that person is not comfortable with, तो आपको उसको पहले से बताना चाहिए कि यार मैं इस तरह we need to tape the session ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे, मेरे पास might be मैं अगर कोई चीज मिस आउट हो जाए तो मैं इसे सुन सकूं. So that's why I am recording the session. So you need to be very careful about this. Then you don't want your interview to be an interrogation. What is interrogation? Anyone? Interrogation क्या होती है? Ma'am, asking questions. Asking questions, right? और investigation, ma'am. और investigation, right? अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि हम आपस में जब क्वेश्चन करते हैं तो हम we started like intriguing those things जो हमारा मकसद नहीं है. हम बहुत सी निटी ग्रिटीज में चले जाते हैं, ऐसी चीजों में जो लाइक जो पूछने की जरूरत नहीं है. तो सामने वाले को लगता है जिस तरह आप मुझे इंटेरोगेट कर रहे हो, या मुझे एक आपने से होता है ना, यू हैव पुट मी इन अ बूथ एंड आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो. सो यू डोंट वांट द पर्सन टू बी अनकंफर्टेबल. आप उसको वेरी कंफर्टेबल वे में यू लाइक टू हैव अ डिस्कशन, नॉट इंटेरोगेशन. थर्ड थिंग, इंटरप्शन. सबसे बुरा लगता है किसी को जब आप किसी को दरमियान में इंटरप्ट करते, कोई बात कर रहे हैं आपने उसको इंटरप्ट किया. सो अगेन दैट पर्सन फील कि यार आप मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या यू आर लाइक आप मुझे बार बार रोक रोक के कुछ बीच में बोल रहे हो. सो अगेन लेट हिम फिनिश, पहले उसको बात को कंप्लीट करने दो, एंड देन यू कैन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क फॉर द क्लैरिटी और मे बी मोर डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन. Lastly, asking questions that put the domain expert on the defensive side. अब defensive again interrogative भी हो सकता है. मैंने सामने वाले को ऐसे शो किया कि यार आपको तो पता ही नहीं है, या आपको तो आता ही नहीं कुछ, तो मैंने उसको बहुत डिफेंसिव कर दिया
कि लाइक वो इसको लगेगा यार कि मैं अपने आप को शायद जो मैं बता रहा इन्फॉर्मेशन वो तो मुझे आगे से क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे दैट पर्सन इज लेटिंग मी डाउन. So again, I don't want my expert to have that feeling. That should not be there. हम defensive की तरफ नहीं जा रहे. We are there to have a good knowledge sharing and capturing. Then sometimes we have this particular thing interviews में भी हो जाती है losing control. जिस तरह मैंने कहा expert ने dominate कर लिया या हो सकता है कभी का developer ने dominate कर लिया, तो हम control of the session would be कि both should be having the control. क्या बात पूछनी है, क्या बात सामने वाले ने कहनी है. So again, we need to have set the parameters कि किस तरह हम बात को कर सकें. Then we need, अच्छा बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, I am pretending जी क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, but हमें clarity of information is not there. So it's good कि we ask for the explanation. अगर डेवलपर को समझ नहीं आ रही एक्सपर्ट की बातें तो एक्सप्लेनेशन ले ले, एग्जाम्पल्स ले ले या कुछ पूछ ले उससे ताकि उसको क्लैरिफाई हो जाए. डोंट जस्ट प्रिटेंड कि यार यू आर गेटिंग whatever is being asked for. Sometimes it also happens that we are promising something that could not be delivered. So again, if we ask यार अच्छा आपको ऐसा भी करोगे, आपको हाँ कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, but if you could not deliver it, you could not give it, don't promise it. वो जो काम नहीं कर सकते उसको promise नहीं करो. Again, this is something that's professionalism की बात की जाए या एक good healthy relationship की बात की, जहाँ पे हमने confidentiality की बात की, honesty की बात की, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. Lastly, bring items not on the agenda. अच्छा बहुत से बातें होती है कि अगर हमने एजेंडा पॉइंट में पहले अपने एक्सपर्ट साथ शेयर किया था कि हम इन बातों में बात करेंगे, हमने कोई बात नहीं बताई भी उसको, लाइक जिसमें हम कहते हैं ना बहुत सी चीजें हमारे डिस्कशन पॉइंट्स में नहीं थी और हमने उसको डाल दिया, तो हो सकता है सामने वाला he is not prepared for that or he does not want to answer that or he is not might be he is like here why you are asking me, this was not part of the discussion. So again, keep things aligned towards was the requirement of that particular meeting. Don't go here and there. Focus on the things that needs to be asked. So these are few of the things that needs to be avoided in terms of asking interviews from expert versus developers. Then sources of error that reduce information reliability. Information जो हमने as expert share की, इसमें हो सकता है बहुत सी information हमें लगे कि ठीक नहीं है, तो what exactly needs to be done? Number one is experts perceptual slant. Now perceptual is like perception. तो सामने वाले की परसेप्शन क्या थी, जिस तरह मैंने अगर कहा उसने इसको किसी और चीज का रिलेट कर लिया, तो इसने कहा हाँ यार ये पहले भी हुआ था, किसी चीज और रिजेम्बलेंस के साथ कर लिया, बिकॉज ही इज परसीविंग इट समथिंग डिफरेंट. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, एरर हो सकता है कि मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था बट ही इज रेफरिंग और मे बी हैविंग अ रिजेम्बलेंस और मे बी हैविंग पॉइंट टू समथिंग एल्स दैट वाज नॉट देयर. सो अगेन we need to clarify कि यार this what you are perceiving is not right, we are talking about something else. So again, one of the things. Sometimes expert failure to remember. बहुत दफा ऐसा होता है यार हमें चीजें याद नहीं रही, it's difficult to describe. बहुत चीजें हम बता नहीं पा रहे होते, like हमें when it's come to describing वो चीज आसान नहीं होती डिस्क्राइब करना कि यार ये कैसे प्रोटोकॉल से, कैसे मैंने काम किया या मैंने कैसे इस पे काम किया. So again, try to like figure it out कि आप उसको किस तरह चीजों को या तो पहले से बताओ या पहले से उनको गो थ्रू कराओ या पहले से might be आप बता दो कि ये चीजें हम बात करेंगे, maybe they would have done their homework as well. Also sometimes expert को fear of unknown होगा. Why do you think experts को fear of unknown हो सकता है? Any idea? जिस तरह बाजू का जिस तरह हमने बात की कि डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गई है, लाइक हमने उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा या हमने उसको एक्सपोज कर दिया या डिस्क्लोज कर दिया, कहीं बता दिया हमने. सो अगेन सामने वाले को लगेगा मैं बता तो रहा हूँ, हो सकता है इन्फॉर्मेशन मेरा नाम लेकर कहीं और कह के इसने मुझे बताया था. ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी होती, तो मुझे अगर मैं इसको बता दूंगा डेवलपर को, सो अगेन ही वुड लाइक. सो वी नीड टू डू एवरीथिंग ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट. हम जो बात भी करें there should not be an error, there should not be any fear element in that, but there should be a mutual respect element ताकि दोनों आपस में comfortable होकर, जैसे हमने कहा be at ease, be comfortable while discussing and talking. Lastly, communication problems that are very common between anyone, like we are having a difficulty either interpreting the information, either perceiving that information, either converting that information, either asking the question as well. उस बंदे को मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं समझ आ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. So then these could be the errors in terms of like information की reliability वहाँ पे कम हो जाती है.
So you need to be from the expert side as well. You need to see how you have to find a solution to these problems. Then errors made by the knowledge developers. Again, ये सारी बातें अभी तक हमने की वो experts related थी. अब बहुत सी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि डेवलपर की साइड से भी there are errors as well. Now errors can be, number one error इनमें mention किया हुआ है age fact. Age effect is basically, for example, मेरे सामने जो डेवलपर बैठा हुआ है, he is 25 or 30 years old and I am being the expert, I'm 50s or mid 60s. So जो age gap है ना, this is like a hurdle between those two. हम बात तो करें बट उसको लगेगा तो बहुत छोटा है मेरी बात समझने के लिए, बहुत लगता है यार इस या कभी बार एज लाइक हमें समझ नहीं आती कि हम अपने बड़ों को किस तरह समझाएं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं. तो एज फैक्टर कुड बी देयर. समटाइम देयर आर रेस इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक बहुत से लोगों में यूजुअली प्रोफेशनलिज्म में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं होता, बट अगेन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देयर आर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ लाइक यार मुझे इस बंदे से बात नहीं करनी, देयर इज बायसनेस इन द रेस इफेक्ट एज वेल, या ये बंदा इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से या इससे है तो मैं इससे इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करूं. सो अगेन दीज थिंग्स कुड बी एन problem as well. Lastly, gender. Gender is some things you are not comfortable while talking to opposite gender. Might be or like if she or he might not be having idea. Might be बहुत दफा ये होता है कि people more have like more confidence in men's rather than in females. Again, this is like एक हमारा जिसको हम biasness कह सकते हैं. Biasness can be anywhere. So again, these can be the errors from the developer sides as well, or from the expert side. यार gender की वजह से they could not resolve the issue, or they could not have the एक trust नहीं develop हो पाया. Any questions up till now? All right. So now these are few of the problems encountered during the interview. Again, जब हम इंटरव्यू एक दूसरे आपस में बैठ के कर रहे थे, now these can be the problems that anybody can face. Number one is response biasness. Anybody know what is response biasness is? मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने जिस तरह उसको इंटरप्रेट किया, जिस तरह परसीव किया, उसने उसको वैसे आंसर कर दिया. हो सकता है उसका रिस्पॉन्स वैसे नहीं था जैसा होना चाहिए था, बिकॉज उसकी इंटरप्रिटेशन गलत थी, उसका परसेप्शन गलत था. मे बी ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे आंसर नहीं देना, जबरदस्ती मुझसे आंसर ले रहे हो या जबरदस्ती मुझसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. सो देयर कुड बी अ बायसनेस इन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. समटाइम इट इज इनकंसिस्टेंट. Inconsistency is basically when something is not in line with the conversation. मैं कुछ बात और कर रहा था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ रहा है. तो उन कन्वर्सेशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है. लाइक जो चीज बारे में बात की जाती है, जिस तरह कहते हैं डी ट्रैक हो जाती है कन्वर्सेशन. जो एक्चुअल बात करने की थी वो बात नहीं हुई, बट हमने कोई और बातों में बात कर ली, या उस पर नहीं हमने बात कर सके. तो अगेन इट्स द अगेन वन ऑफ द थिंग एज अ की एज द नॉलेज डेवलपर आई नीड टू कम, मतलब कहते हैं ना जिसको हमने उनको डी ट्रैक से वापस ट्रैक पे लेकर आना है कि हम इस बारे में बात करें ताकि इनकंसिस्टेंट ना हो. कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे आर थिंग्स लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक जिस तरह हमने एज की बात की, जेंडर की बात की, मे बी रेस है, मे बी कम्युनिकेशन बैरियर्स है, मे बी लैंग्वेज बैरियर्स है. सो अगैन वी नीड टू बी लाइक हम इन सब चीजों को हमें ओवरकम करना पड़ेगा ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें. व्हाट इज हॉस्टाइल बाय द वे? एनीबडी नो व्हाट इज हॉस्टाइल? Ma'am, I think it's angry attitude or negative attitude. All right, ठीक है. हॉस्टाइल अप्रोच इज बेसिकली हम सामने वाले को ये फील कराएं कि यार आप जो बात कह रहे हो बस ठीक है, सही है, या आप सही नहीं कह रहे. या बहुत दफा हम अगले वाले को कहते हैं ना लाइक पुट अ पर्सन इन दैट कि आप उसको बहुत ही मुश्किल से लग रहे हो, या ऐसे लगे कि यार आप मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हो, या आप उसको एक एंग्री एटीट्यूड भी कह सकते हैं, या फोर्स्ड पार्टिसिपेशन. अगेन फोर्सफुली आई एम आस्किंग दैट पर्सन कि आपको बताना है मुझे, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन. अगर इट्स अ सिंगल एक्सपर्ट, या यू आर द ओनली पर्सन, यू नीड टू टेल मी, you need to disclose all the information. So this becomes a hostile attitude. या forcefully किसी से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हो. Then sometimes it happens कि बहुत standardized questions की वजह से भी it's difficult to ask the questions. Like वो expert clarify नहीं कर सकता अपनी चीजें क्योंकि आपने बहुत structured rigid questions है, बस उन्हीं पे आपने रहना है, उसी के बारे में बात करें. ये the same goes with the lengthy questions के question इतने लंबे हैं कि जो असल बात पूछी जा रही है वो
डिस्टॉर्ट हो गई है, समझ ही नहीं आ रही कि क्वेश्चन क्या था, तो दिस कुड बी वन ऑफ द इशू। देन समटाइम लॉन्ग इंटरव्यूज आर बेसिकली इतना लंबा हो गया इंटरव्यू कि अगला वाला भी हो गया कि यार कब खत्म होगा, कब बात खत्म होगी, कब हम उन चीजों शुरू खत्म करेंगे। इसमें देर आर फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू शो in terms of this one. Verbal cues, verbal closing cues versus non-verbal. Verbal cues are like, I would start saying, okay, this is my summary, this is like, this cover pretty much. That shows I'm ending up. तो इसका ये verbal cues का message आता है. Sometimes non-verbal cues like हमारे non-verbal जो communication के through भी हम सामने वाले को बता देते हैं यार अच्छा बस ठीक है. I started to look at watch, I started to use the time, I started to pack up my stuff, I started to close the things, I started to close my notebook. So again, ये non-verbal cues हम सामने वाले को दे रहे हैं कि interviews finished. मैंने जो पूछना था वो मैंने सब बातें पूछ ली हैं. So again, these are the things we need to pick. कि यार अच्छा सामने वाला को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो comfortable है. So these are few of the things that needs to be there. अगर we encounter these problems, so the rest of the things can be done and managed well. All right, then we have the solution of this particular interview. Now again, coming to the solution in terms of like, जो अभी तक हमने सारी बातें की interviews की, expert की, in terms of like sharing की, either a single expert versus many experts or multiple one, having phrasing out the questions, having different types of questions, having different types of analogies, how to understand the expert style, what's the right impression. जो भी हमने अभी तक बातें की इस particular chapter में, the conclusion is how we are going to have in terms of like आप उसको प्रोटोटाइप कैसे करोगे. तो इन्होंने एक सोल्यूशन ये बताया हुआ है कि it is good approach if you have a rapid prototyping. Now rapid prototyping means then and there जो बता रहा है आप उसको एक जिसमें कहते हैं ना ब्लूप्रिंट में लिया, उसको आप फिजिकली या आपको अच्छा ठीक है ये चीज है तो मैं इसको स्टेप डाउन करके सामने दिखा दूं, अच्छा ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा. तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है कि आपको देन एंड देयर फीडबैक मिल जाता है, देन एंड देयर आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज चाहिए. अब देन एंड देयर आप वहां पे बैठे बैठे आप उनसे ये पूछ सकते हो अच्छा ठीक है ये चीज सही नहीं हुई तो इसको कैसे आगे करेंगे. आप इनकरेज करते हो कि किस तरह हम इसकी चीजों को देख सकते हैं. सो अगेन यू वुड हैव द आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली वाज डिस्कस्ड अबाउट. अच्छा, अब इसके जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं. ना व्हाट आर द ड्रॉबैक्स. अच्छा, बहुत दफा ड्रॉबैक्स ये होता है कि जब आप सामने देन एंड देयर किसी चीज को इंस्टेंट फीडबैक दे देते हो तो सामने वाले को समझ नहीं आती. वो कहते हैं यार प्रोटोटाइप में तो मुझे समझ नहीं आ रही, कि मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज मैंने ऐसे ही करनी है. या समटाइम्स उनको जब आप दिखा देते हो तो दे आर लाइक यार ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, किसी और बेहतर तरीके से बना सकते हैं. तो प्रोटोटाइप से उनको सो अगेन दिस कुड बी अगेन लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा. आपने एक दफा काम किया आपको दोबारा काम करना पड़ेगा. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी सीन कि आप किस तरह इसको करो ताकि रैपिड प्रोटोटाइपिंग से आपके अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, माइट भी कुछ चीजें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं, माइट भी कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती. प्रोटोटाइपिंग इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट और द फिजिकल लेआउट और समथिंग हैविंग इन हैंड. जो बात आपको बताई जा रही है आप उसको वहीं पे इंटरप्रेट कर रहे हो सामने वाले के ईज के लिए या सामने वाले के फीडबैक के लिए, या आप उसको मॉडिफाई कर सको. सो अगेन दिस वाज फ्रॉम द रैपिड प्रोटोटाइपिंग. देन वी हैव जो हमने अगर बात करें अभी तक हमारी 3 चैप्टर्स का जो क्रक्स है regarding Nonica models of knowledge creation and transformation. When knowledge is transferred from tacit to tacit, that is while discussion, while talking, तो वो सिर्फ individual to team discussion की तरह रह जाती है. तो इसको हम socialization कहते हैं. When it becomes from tacit to explicit, जब हम उसको documents की तरफ लेके आते हैं, जब उसको हम कहीं जगह लिख लेते हैं, तो उसको कहते हैं externalization. When explicit to tacit, now something was in written, we have in written, हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ था, हमें पता था. अब हम उससे डिड्यूस करें रिजल्ट्स, हम उसको डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया शेयरिंग करते हैं. तो बेसिकली इट्स कॉल्ड इंटरनलाइजेशन. एंड लास्ट वन इज एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, लाइक रिटर्न टू रिटर्न में अगर हमने कोई चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ईमेल के रिस्पॉन्ड में हमने ईमेल ही करनी है, हमें किसी ने अगर कोई लेटर लिखा है तो हो सकता है हम उसको लेटर लिखेंगे. हमें किसी ने किसी चीज़ का फीडबैक मांगा है रिटर्न में तो हम रिटर्न फीडबैक ही देंगे. So basically explicit to explicit is called as combination. So this was the model of Nonicas जो अभी तक हमने पिछली 3 classes में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं regarding knowledge management and knowledge creation. तो आज का टॉपिक जो हमारा था basically that was capturing the knowledge, tacit knowledge. The last slide
This is basically the model in terms of like what was the user interface में क्या होना चाहिए, what are the access protocols, हमने last class में बात की थी, कितने हमने एक्सेस देना है, क्या हमने फायरवॉल्स रखनी, क्या हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी है, फिर हमने कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिल्टरिंग के थ्रू क्या चीज़ हमने कस्टमाइज करवानी है, क्या चीज़ हमें बतानी है, किस तरह हम इसको कर सकते हैं, किस तरह हम इसको आगे लेके जानी है, फिल्टर आउट करनी है। फिर हमें क्या चीज़ अपनी नॉलेज शेयरिंग में इन टर्म्स ऑफ लाइक हमें किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि यार ये एप्लीकेशन ऐसे नजर आएगी, इसका ये प्रोटोकॉल होगा, ये इसका ये वेबसाइट होगा, .com होगी, .pk होगी, या .edu.pk होगी, whatsoever. So again, different transport IPs and TCPs we are allocating. फिजिकल लेआउट उसका कैसे लगेगा, फिजिकल लेयरिंग इसकी कैसी होगी, किस तरह है इसको हम डेसिमिनेट करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे हाउ इट इज गोइंग टू लुक, कि जब सामने वाला इसको देखेगा तो उसको क्या चीज नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ लाइक हमारा जो डाटा शेयरिंग में. सो बेसिकली दीज आर द ऑल लेयर्स व्हिच वी वर हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड, कि जब कैप्चरिंग टैसिट नॉलेज, आइदर इट्स गुड टू गो हैविंग अ बिल्ड इन सॉफ्टवेयर, अ बिल्ड इन कोई भी हमारे पास इन हाउस होना चाहिए, या वी लाइक टू हैव इन टर्म्स ऑफ बाइंग. So again, there are different options towards that. Either I'm good to go with the buying option or I'm going to go with the building option. If we go with the first option, that is in-house development, या हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई डेवलपर अपना in-house लेते हैं तो उसकी डेफिनेटली कॉस्ट हाई होगी, मे बी शॉर्ट टाइम होगा क्योंकि यूजर उसके पास बैठ के काम करवा लेगा और हम अब उसको हाईली कस्टमाइज करवा सकते हैं. जब हम एंड यूजर पे डेवलपमेंट छोड़ देते हैं तो कॉस्ट उसकी यूजली लो होती है, क्योंकि एंड यूजर खुद ही उसको डेवलप कर रहा है. मे बी उसकी स्किल सेट है या नहीं, तो टाइम फैक्टर ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, और जो कस्टमाइजेशन होगी वो यूजर स्पेसिफिक होगी. लाइक बीइंग अ यूजर आई नो व्हाट एग्जैक्टली आई रिक्वायर, तो मैं उसको खुद ही अपने तरीके से देख सकती हूँ. अगर हम उसको आउटसोर्स कर देंगे, अगेन आउटसोर्सिंग हर सम बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. मीडियम टू हाई अगेन कॉस्ट डिपेंड करते हैं हम किसको आउटसोर्स करें, कौन हम एक्सटर्नल को लेके आ रहे हैं. शॉर्टर देन इन हाउस, डेफिनेटली टाइम फैक्टर कम होगा उसमें, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट, दे नो, और कस्टमाइजेशन भी हमारी हाई हो सकती है. ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन इज बेसिकली रेडीमेड सोल्यूशन. जो रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, कि कोई सा भी अवेलेबल, हमने कहा चलो यार लेट्स हैव दिस, तो हमने उसको उठा लिया और उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी. अब उस पर वर्किंग करने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे पास उसकी डेफिनेटली उसकी कॉस्ट तो हमारे पास हाई होनी चाहिए, लो होगी. व्हाट डू यू थिंक? मैम प्रोसेसिंग से तो ज्यादातर कॉस्ट जो है लो होती है, रेदर देन हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें उससे. अगर खुद, अगर ठीक है, इकोनॉमी ऑलराइट, और ठीक है, स्पेशल की तरफ जा रहे होते हैं, कोई बहुत स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट या कर लें तो फिर उसकी कॉस्ट हाई होती है. राइट, ठीक है. अब इसमें डेफिनेटली टाइम फैक्टर बिल्कुल कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन था और हमने रेडीमेड उठा लिया, तो डेफिनेटली टाइम फैक्टर वहाँ पे नहीं आता. कस्टमाइजेशन अगेन, कुछ चीजें हमारे तरीके से होंगी, कुछ चीजें हमारे तरीके से नहीं होंगी, तो हम कहेंगे 80% हो सकता है. समटाइम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर लाइक 80% हमारे लिए वो हो जाती है इफेक्टिव. So this was it from particular chapter. Any questions regarding it?